Now this session I would want it to be interactive. ठीक है, my whole intention is कि आप participative रहें और आप कुछ सीख के जाएं यहाँ पे. Are you with me on this? Yes? Very good. Now रजिस्ट्रार सर ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में. Yes or no? Some of you remember that line? Any of you remember this line? We all have dreams, right? हम सबके सपने हैं, right? Yes or no? But ये मुझे बताइए कि आपका ड्रीम क्या है? This lady in white shirt there. Can you tell me what is your dream? We all have dreams. And मैं उन ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रही जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं. मैं उन ड्रीम्स की बात कर रही हूँ जो सपने आपको जगा के रखते हैं. रजिस्ट्रार साहब ने बहुत खूबसूरती से ये प्रस्तुत करी थी लाइंस. एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा ये बोली गई हैं. सो व्हाट इज योर ड्रीम मैम? व्हाट्स योर नेम? रक्षा. रक्षा, व्हाट इज योर ड्रीम? रक्षा, क्या ड्रीम है आपका? व्हाट इज योर ड्रीम? मैम यहाँ पे पीएचडी करनी है फिलहाल. यहाँ पे पीएचडी करनी है. ओके ओके, दिस जेंटलमैन हियर, व्हाट्स योर नेम? I would like to be a teacher. You would want to be a teacher. Very good, very good. This lady in pink there at the back seat. Yes, can you please stand up? With long hair, yes. Please stand up. I can see all of you, by the way, so don't worry, I'll come to you. It's perfect. ये चलेगा. हाँ जी, आप खड़े होइए. आपका what is your dream? मैं प्रोफेसर लाइन में जाना चाहती हूँ. ओके, क्या नाम है आपका? साधना. साधना. ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं. वेरी गुड. दिस जेंटलमैन इन ब्लैक, व्हाट्स योर नेम? आप? यस, आप खड़े होइए. हाँ जी, आपको क्या नाम है आपका? हर्ष. ओके हर्ष, व्हाट इज योर ड्रीम? You also want to be a professor. Did you notice one thing about all these people who spoke right now? Most of us try to achieve our dreams, our aspirations through the work that we do. Yes? You all agree? Yes or no? Yes? So can anybody define their dream job for me, their dream career? What is it that you expect out of your dream career? Is it money? Is it fame? What is it that you expect? Yes? Yes, please. Satisfaction, job satisfaction. Very good. Anybody else? Yes? What's your name, by the way? What was your name? That girl who spoke, job satisfaction? Divya. Very good, Divya. Yes. Okay. Okay, you want to be responsible in your field of work. Very good answer. What's your name? Hitesh. Can we have a round of applause for Hitesh, please? Very good. Anybody else wants to give it a try? What is your expectation out of a dream job? Somebody said satisfaction. Somebody said responsibility. Being responsible for their career and for people who they interact with. Anybody else? A raise of hands, please. Very good. What's your name? Minakshi. Yes. Sorry? Enjoyment. Very good. In fact, इस बात से मुझे एक चीज़ याद आती है. ये मेरा personal quote है और ये one of my favorite है. If your passion is aligned to your profession, success is guaranteed. अगर कोई आप ऐसी लाइन पकड़ लें या कोई ऐसी करियर स्ट्रीम पकड़ लें जो जिसमें आप इंजॉय करते हो, जो आप ट्रूली पैशनेट हो जिसके बारे में, आपका सक्सेस गारंटीड है. आप अगर बेस्ट सिंगर्स के बारे में देखें, बेस्ट स्पोर्ट्समैन के बारे में देखें, दे एक्चुअली एंजॉय देयर करियर, देयर प्रोफेशन, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल एट इट. डू यू ऑल एग्री? यस?
यस, सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो भी आप करियर लाइन लें वो ऐसी लाइन पकड़े जहाँ पे आप इंजॉय कर पाएं. Now coming back to my original this thing, somebody said enjoyment, somebody said satisfaction, somebody said responsibility. Anybody wants to add to this? कोई और ऐड करना चाहेगा? Yes, please. आपको क्या कोई ऊपर से भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है? बालकनी से? I could hear some screams. Yes, what is your name? Mohit. Mohit, what is your dream? रोहित, सॉरी रोहित, आपका क्या पैशन है, क्या मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इन्वेस्टमेंट बैंकर. और इन्वेस्टमेंट बैंकर के बन के क्या चाहते हो? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल. वेरी गुड, वेरी गुड. एक ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज. यू नो, आई मस्ट शेयर विद यू अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. मैंने ऐसे ही बहुत स्मार्ट बच्चे थे, बहुत इंटरैक्टिव थे, मैं उनके साथ इंटरैक्ट कर रही थी. सो आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू देम एंड दिस टॉल, यू नो, वेरी स्मार्ट लुकिंग जेंटलमैन, rather I would say a smart looking boy, got up. He had a very naughty smile on his face and he said, "Ma'am, my dream job is anything that gives me 6 5 4 3 2 1." I looked at him. I said, "What do you mean?" He said, "Ma'am, let me explain." He said, "Ma'am, मतलब बहुत simple है. It is any job that gives me a 6-digit salary, 5 working days, a 4-wheeler, a 3 BHK house, 2 kids and 1 wife." So for different people, dream job or dream career could mean different things. Today, the reason why I'm here is to motivate you and help you understand where is your dream passion or your true passion lies and how you can achieve it. Are you with me on this? Yes or no? Yes? हम यूनिवर्सिटी में, हम कॉलेज में क्यों एडमिशन्स लेते हैं? ताकि हम कुछ पढ़ सकें. यस, एंड वो पढ़ के हम क्या अचीव करना चाहते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी. यस और नो? यस. एंड द अल्टीमेट सक्सेस वुड बी, टुडे इज योर ओरिएंटेशन सेशन, ओके? द अल्टीमेट सक्सेस वुड बी कि जिस दिन आप यहाँ से ग्रेजुएट करें, जब आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में खड़े हों, तो आपके पास नॉट जस्ट एक ग्रेजुएशन डिग्री हो, बट साथ ही साथ एक ऑफर हो. यस और नो? So with that vision in mind, I will ask you another question here. Now, what kind of jobs do you think, are available to you in the market today? What kind of jobs are available? Can I see some raise of hands, please? Okay, let's broadly divide it into government sector and private sector. यस. नाउ जहाँ तक मुझे समझ आता है, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है, यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के टुवर्ड्स बहुत ओरिएंटेड हैं. यस और नो? बट हैविंग सेड दैट प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो अ बूमिंग सेक्टर. एंड इनफैक्ट हमारी जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयमेंट है, हमारे को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मिलती है इस कंट्री में. यस और नो? आर यू विद मी ऑन दिस? सो ओपन योर माइंड टू दोज areas as well. Okay, open your mind to those areas as well. Okay, so having said that, what do you think would be really required for you to get a job in the private sector? Government sector के बारे में मैं ज़्यादा नहीं touch करूँगी because that's not my area of specialization. Since I come from a private sector, more specifically from the IT organization, I would talk and delve more about this. And I want this to be interactive. If you have any questions at any point in time, feel free to ask. Are you with me on this? Yes? Very good. Now, can I know that how many of you would, even know कि भाई what kind of jobs and opportunities will be provided to you in the private sector? Can I see some raise of hand, please? Okay, can I know which are the main sectors that provide opportunity in the private sector? Can I see some raise of hands, please?
Can I see some raise of hands, please? Okay, sales and marketing. What's your name? Yash. Very good, Yash. What else? Yes, please. IT sector, very good. तो आप की मातृभाषा हिंदी है, आप हरियाणवी भी बोलते हैं, yes. बट एक चीज़ आपको याद रखनी है कि whether we like it or not, चाहे हमारे को पसंद हो या ना पसंद हो, today English has become the world's global language. ठीक है? And if you want to be a success, especially at a global level, आपको इस लैंग्वेज पे एक अच्छी कमांड होल्ड करनी बहुत 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 ज़रूरी है. एंड किसी भी लैंग्वेज पे आप कब एक अच्छी कमांड होल्ड कर पाते हो? कब कर पाते हो? जब आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करते हो. प्रैक्टिस इन द सेंस कि आप अपनी डेली लाइफ में उसे यूज़ करें. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे डेली यूज़ करें. उससे ही आप अपनी एक अच्छी कमांड होल्ड कर पाएंगे उस लैंग्वेज के ऊपर. तो डोंट शाई अवे. क्या कई बार क्या होता है कि अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो स्टाइल मार रहा है. यस, और या आपके फ्रेंड्स के साथ यार हिंदी में बात करना, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब क्या कर रहा है तू. बट यू नो, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस दैट अगर अगर हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम इस लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड पाना चाहते हैं तो हमारे को डेली लाइफ में उसको उतारना पड़ेगा. आपको समझ आ रही है? मैं अपनी हिंदी में ही बात कर रही हूँ. कहाँ गए वो मेरे फ्रेंड? यस, समझ आ रही है? तो आपको ये चीज़ करने के लिए आपको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप कैसे रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स. यस, आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वेयर यू कैन लर्न गुड वोकैबुलरी. यस, तो आप रेगुलरली रीड कीजिए. सेकेंडली, इन योर डेली लाइफ स्टार्ट टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स. थोड़ी बहुत आप शुरू में गलतियां करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप तभी सीख पाएंगे जब आप रेगुलरली इसे प्रैक्टिस करें. और दूसरी बात, हमेशा अपना एम लेके चलिए कि हाँ, मेरे को इतने टाइम में ये अचीव करना ही करना है. मेरे को 2 साल में एटलीस्ट एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन तो मैं इंग्लिश में कर पाऊँ. यस, तो ये आपने अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के टुवर्ड्स, स्पेशली बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वेदर वी विल लाइक इट और नॉट, इंग्लिश हैज़ बिकम द ग्लोबल लैंग्वेज. एंड इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस, you have to learn to speak in English. Now you will ask me कि मैम कम्युनिकेशन स्किल्स तो वन पार्ट हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग एक पर्टिकुलर जॉब के लिए व्हाट आर द एंड इन स्किल्स के बारे में मैं ब्रॉडली बात करूंगी. एंड दीज स्किल्स आर कॉमन टू ऑल जॉब्स. देयर आर 2 टाइप ऑफ स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन एनी काइंड ऑफ जॉब. एक आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं और एक आपके होते हैं टेक्निकल स्किल्स. आर यू विद मी ऑन दिस? टेक्निकल स्किल्स आर समथिंग दैट यू एक्वायर ड्यूरिंग योर एजुकेशन. ओके, टेक्निकल स्किल्स आर समथिंग दैट यू एक्वायर ड्यूरिंग योर एजुकेशन. सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट स्किल्स आर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. यस, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट स्किल. योर एटीट्यूड इन लाइफ, that is also soft skills. And these soft skills have become almost 50% of the selection process. Okay, so आपका जो technical ability है 50% है, 50% soft skill ability होती है. And if I have to divide these broadly, there are 5 attributes that any organization looks for in any person. First and foremost is the learnability. It is okay for them कि अगर आपको आज सब कुछ नहीं आता, but what is important for them is कि आपका एक learnability वाला attitude है या नहीं. Yes, आप एक learner बनना चाहते हैं, आप एक learn करने की क्षमता रखते हैं या नहीं. Yes, so that attitude towards learning is very, very important. The second aspect is planning and organizing skills. Okay, this is also in the softer aspect. Planning and organizing skills आपको ऐसे help करते हैं कि आप whether you're able to plan your day, how you're able to plan your studies, how you're able to plan for your any kind of
assignment given to you, whether you're able to plan properly for it and execute it. So this is the second attribute that any organization looks for. The third attribute that we talk about, like I mentioned, is communication skills. And जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर में एटलीस्ट, प्राइवेट सेक्टर में एटलीस्ट, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आपके देखे जाएंगे. पर ये पता है क्यों होता है? इट इज़ नॉट दैट वी हैव प्रेफरेंस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज़ जस्ट दैट कि जब आप एक ग्लोबल इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे देयर विल बी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, आपके यू नो समबडी माइट बी फ्रॉम चाइना, कोई अमेरिका से होगा, कोई जर्मनी से होगा. Okay, so that one language which is common to all is English. Yes? So it is very important that you have a good command over this language अगर आपको successful बनना है. Okay? And इसमें कोई शाय हुए होने की बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे सबको आएगी. ठीक है? हमने सबसे पहली जो लैंग्वेज अपनी ज़िंदगी में सीखी होगी वो मातृभाषा या मदर टंग सीखी है. Yes? उसके बाद हम बाकी सारी लैंग्वेजेस भी सीखते हैं. But English can be also an acquired skill, and over a period of time, if you practice, you will get a hold of it. Okay? So this is the the third aspect of the soft skills that is very important. The other two aspects, like I mentioned, are the technical skills. Technical skills में क्या आता है आपका? Analytical ability. कि आप कैसे किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपको उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करके उसे समझ के उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं. यस, एंड द लास्ट इज द टेक्निकल नो हाउ, द टेक्निकल ओरिएंटेशन, द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज एन आउट एंड आउट हाउ यू परफॉर्म टेक्निकली. आर यू विद मी ऑन दिस? यस or no? Yes? Okay, great. Now I would also share a story here. Okay? Now, this is a story which is very close to my heart. And, you know, just like you all, I was, you know, also one of the students who had come to, you know, attend one of the sessions. And in this particular session, this session was especially very important for us because it was the first organization on the campus. Okay? And, you know, I remember very distinctly that I was in two minds whether I want to sit for this organization or I want to apply for some other organization. And I remember I went for this particular presentation purely because I wanted to understand what it has to offer me and what is it that I can get out of it. Okay? And I still remember the name of that lady. Her name was Priyadarshini Prabhu, very smart looking lady, very soft, very well spoken. She presented the entire presentation. And I remember thinking to myself as a child that I wish I had her kind of job. It was a very aspirational thing. ठीक है? पर जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से मांगते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको वो देने में लग जाती है. You all agree? Yes? ओम शांति ओम का डायलॉग है. Yes? शाहरुख खान, do you remember it? Yes? And this just happened with me. So it so happened that I sat for the process, but that time I was in engineering. I got through engineering, that particular process. Then I decided to even go for my MBA. I went for my MBA. I got a scholarship to do my second master's in UK. And when I got back, I got approached by the same company in the same profile. So what I'm trying to tell you here is, like I mentioned, if you really align a passion with your profession, success will be guaranteed to you, and don't ever stop dreaming about them. Are you with me on this? आपको मैं एक नज़रिया दिखाना चाहती हूँ, एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ. एक पर्सपेक्टिव आपका भी सही है, ओके? पर पर्सपेक्टिव मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप एस्पायर करते हैं कि अपनी एस्पिरेशन आपकी रखते हैं कि भाई मैं प्राइवेट सेक्टर में एक जॉब पा पाऊँ, यस, तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ उस सेक्टर में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक और लैंग्वेज पे कमांड होनी बहुत ज़रूरी है. What to do when we just think that our dream job is standing too far from us? तो देखो, पहली बात तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. देयर इज नथिंग दैट इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. ओके? एंड
टू थिंक दैट योर ड्रीम जॉब इज गेटिंग टू फार, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस जॉब को पाने के लिए आपको क्या स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे. सॉफ्ट स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स के बारे में मैं दोनों आपके बता चुकी हूँ, राइट. सॉफ्ट स्किल्स आपको रेगुलरली आपको उन पे काम करना पड़ेगा टू बी एबल टू बिकम प्रोफिशिएंट एट इट, यू नो, वेदर एनी काइंड ऑफ जॉब. सपोजिंग आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं, सो देयर इज अ सर्टन वे दैट वहाँ पे के लोग जैसे मैं कहती हूँ कि वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादातर यूज़ करी जाती है टू टॉक एंड एवरीथिंग. तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए. टेक्निकल स्किल्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो कोडिंग स्किल्स एक्वायर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोडिंग की. यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस एक्सेट्रा. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू एक्वायर टू बी एबल टू परफॉर्म बेटर एट दैट पर्टिकुलर जॉब. यस, आर यू विद मी ऑन दिस? तो अगर आप दोनों टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल अपने ड्रीम जॉब के एक्वायर कर लेंगे तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग दैट जॉब. Okay, and then of course you have to do your research on to which are the companies that offer those dream job, apply for them, and then you know the process is set after that. Yes, are you with me on this? Communication वो नहीं है जो आप सिर्फ अंग्रेजी में फराटेदार आप बोल के यहाँ पे चले जाएं और सामने वाले को कुछ ना समझ आए. कम्युनिकेशन जो टेक्निकली लैंग्वेज होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडियाज़. आप अपनी बातें और अपना थॉट प्रोसेस किसी के साथ एक्सचेंज कर पाएँ, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन. सो मेरा कहने का ये मतलब है कि कम्युनिकेशन इज़ कि आप अपनी लैंग्वेज सामने वाले के आगे रख सकें और सामने वाला आपकी बात समझ के आपको जवाब दे सके. यस, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई अगर आप एक चाइनीज़ के सामने बैठे हों, एक जर्मन के सामने बैठे हों, आप ही के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, एक इटालियन के साथ बैठे हों और आप यहाँ पे आप हिंदुस्तान से हैं और आपके पास सारी चाइनीज़ को चाइनीज़ आती है, इटालियन को इटालियन आती है, जर्मन को जर्मन आती है और इंडियन को हिंदी आती है, तो वो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, वो बात कैसे करेंगे? तो मैंने आपको इंग्लिश पे इसलिए एम्फसाइज कर रही थी बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. हम वेदर हम पसंद करें या ना पसंद करें, मैं यहाँ पे किसी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारी एक मजबूरी है पर ये बहुत ज़रूरी है. ये हमारी मजबूरी है पर ये एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहें और अपने आप को एक ग्लोबली अपनी आवाज़ सुनाना चाहें तो वो लैंग्वेज हमारी मदद करती है. एकेडमिकली मोर प्रिपेयर्ड होंगे, मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स होंगे जॉब्स एंड टुवर्ड्स गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. दैट टाइम विल टॉक मोर इन डिटेल्स, बट थैंक यू सो मच फॉर इट एंड थैंक यू फॉर बीइंग इंटरैक्टिव. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने एक बहुत अलग अलग अपने पर्सपेक्टिव सामने रखे हैं और बेझिझक शेयर कराए. ओके, इस बात से भी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि सर ऑल्दो इन बच्चों का दिमाग चाहे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल या फिर कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सपेक्टिव लाने का हो, बट उस पर्सपेक्टिव को इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने आगे रखना और एक कॉन्फिडेंटली बात करना, ये भी आप लोगों के बारे में ये दर्शाता है कि आप लोगों में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई आगे बढ़ा सकता है या कोई आगे रोक सकता है, वो कौन है? सिर्फ आप. आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने आप पे काम करना है एंड आई एम श्योर कि आप अगर चाहें तो स्काई इज़ द लिमिट. Okay, so with that note, all the very best. So thank you so much everybody and thank you for being an interactive audience. Okay.